بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نسب ہے محمد، عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ، کعب، لوئی، غالب، فہر تک جو ہے ہم نے یہاں پہ لکھا ہے۔ اس سے آگے جو ہے پیچھے جو ہم نے لکھا تھا وہ ہم نے آپ کو دکھلا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں قصی نامی جو ہے اللہ کے رسول کے جو دادا ہیں، انہوں نے سب کو جمع کرا عرب کو جو بحرین یا دوسرے جگہ چلے گئے تھے، اور کہا بھائی عرب تو ہمارا ہے، ہمیں جا کے ان سے لڑنا ہے۔ انہوں نے بہادری دکھائی اور جو وہاں ان سے لڑے، اور پھر بنو خزاع کو 440 میں وہاں سے بھگایا ہے۔ بنو خزاع 150 میں آئے اور یہ 440 میں جو ہے عرب سے پھر انہیں بھگایا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قصی جو ہے اللہ کے رسول کے دادا قصی 1 2 3 4 5 پانچویں پشت کے اندر جو ہے اللہ کے رسول کے دادا تو قصی ہیں، انہوں نے جو ہے بنو خزاع سے عرب کو خالی کرایا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اسی طرح جو قریش ہے، اب قریش کو سمجھیے، یہ تو ہم نے اس سے پہلے کی کچھ باتیں سمجھا دیں جو آسانی ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دادا ہے فہر نا، ان کا لقب قریش تھا، ان کا جو ہے سیمبل، انہوں نے اپنا سیمبل جو قریش رکھا فہر نے۔ یہ بہت زیادہ طاقتور تھے، بہت زیادہ بہادر تھے نا، تو اس لیے انہوں نے اپنا لقب جو ہے قریش رکھا۔ جو کوئی بہادر ہوتا ہے یا بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا سیمبل یا ان کا لقب جو ہے بہادری سے یا شیر، ہمارے یہاں شیر سے جو ہے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ جگہ شاہین سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہیں چیتے سے، کہیں اور مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ تو ہر ملک کا کلچر الگ ہوتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے اپنا سیمبل یا اپنا لقب اس طرح رکھتے ہیں۔ قریش ایک پانی کے جانور کا نام ہے، یہ مچھلی ہوتی ہے اسی طرح کوئی جانور جو پانی کے اندر رہتا ہے جس کو عربی کے اندر قریش کہتے ہیں، وہ سب جانوروں کے اندر سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو اس لیے فہر جو ہوتے بہادر ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنا لقب قریش رکھا، یعنی بہادر آدمی۔ جیسے ویسے برادران آتے ہیں جیسے وغیرہ میں تو کہتے ہیں کون آیا کون آیا، وہ شیر آیا شیر آیا نا، یہ نعرہ لگتا ہے اکثر۔ تو جو ہے بہادروں کے لیے ہمارے یہاں اکثر شیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے لیے کون سا لفظ استعمال کرا؟ قریش کا، فہر میں انہوں نے ان کا لقب جو ہے قریش پڑا۔ اس کے بعد ان کے اولاد ہیں غالب، پھر لوئی، پھر کعب، پھر مرہ، پھر کلاب، پھر قصی، پھر عبد مناف، ہاشم، عبد المطلب، عبد المطلب کے بعد عبداللہ، پھر محمد۔ جب تو یہ فہر یعنی قریش کے جو 10 خاندان ہیں، ان سے ہی سارے خاندان نکلے ہیں۔ ہم نے کہا تھا بڑے بڑے خاندان جو ہے 10 خاندان ہیں قریش کے۔ پہلا خاندان تو یہی ہے، آپ دیکھیے ہم نے لکھ بھی دیا نمبر 1، اللہ کے رسول کا خاندان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے والد عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ، کعب، لوئی، غالب اور فہر۔ اسی میں ابو طالب۔ تو پہلا خاندان کون سا ہے؟ بنو ہاشم، پہلا خاندان بنو۔ جو آدمی مشہور ہوتا تھا یا طاقتور ہوتا تھا وہ اپنا خاندان بنانے میں جو ہے کامیاب ہو جاتا تھا، جو کمزور ہوتا تھا اس کی نسل تو چلتی تھی لیکن اس کا خاندان مشہور نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کے خاندان کو لوگ بہت بھول جایا کرتے تھے۔ حقیقت ظاہر سی بات ہے، جو آدمی زندہ ہے اس کی نسل چلتی رہتی ہے، لیکن جب مشہور نہیں ہے اس کے مشہور نام سے خاندان نہیں چلا۔ تو اس کے اندر جو ہے ہاشم، اللہ کے رسول کے جو دادا ہیں، یہ بڑے مشہور تھے، طاقتور تھے، سردار بھی تھے، تو ان سے خاندان چلا۔ ہاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب۔ عبد المطلب کے بارے میں تھوڑا سمجھ لیجئے۔ اصل میں مطلب جو ہے ان کا نام اصل میں شعبہ تھا، عبد المطلب کا نام اصل میں شعبہ تھا۔ ہوا یہ کہ ہاشم جو ہے یہ مدینہ آئے، مدینہ آ کر انہوں نے شادی کری، جو اللہ کے رسول کے پردادا ہیں۔ شادی کرنے کے بعد جو ان کی اہلیہ وہ پریگننٹ ہو گئی۔ اس کے بعد ہاشم تجارت کے غرض سے ملک شام یعنی غازہ گئے، جو فلسطین کا فلسطین ہے اس وقت کا وہ شام تھا۔ یہ ہاشم غازہ یعنی ملک شام چلے گئے، وہاں جا کر ہاشم کا جو ہے انتقال ہو گیا۔
हाशिम के भाई थे एक अब्दुल मुत्तलिब, एक अब्दुल शम्स थे, जो हमने लिखा क्योंकि यहाँ कबीले का जिक्र है इसलिए उनका कबीला नहीं चला, इसलिए उसको हमने यहाँ खास तौर जिक्र नहीं करा। और यहाँ अब्दुल शम्स से कबीला चलेगा तो इसलिए दो इनके एक भाई का नाम लिख दिया। अब्दुल मुनाफ के 4 बेटे थे, हाशिम, अब्दुल शम्स, नौफल, तो एक नाम और था तो ध्यान नहीं आ रहा फिलहाल। तो हाशिम मुल्क शाम गए तिजारत की गर्ज से, वहां इंतकाल कर गए और इनकी एहलिया जो थी प्रेग्नेंट थी, तो ये पैदा हुए, जो अल्लाह के रसूल के जो दादा अब्दुल मुत्तलिब है मदीने के अंदर पैदा हो गए। जो इनके भाई थे मुत्तलिब, उनको किसी ने खबर दी भाई आपके भाई मदीने गए, वहां जाकर उन्होंने शादी करी और जो वहां एक बच्चा ही पैदा हुआ वो आपकी नस्ल से। जो हाशिम मुत्तलिब को पता चला जो हाशिम के भाई थे, तो लिख देते हैं। तो मुत्तलिब इनको शोभा को लेने गए, वहां जाकर पूछा कि भाई मेरे भाई ने किनसे शादी करी, मेरी भाभी का नाम क्या है, उनका पता मालूम करा, पता चल गया भाई ये है। जाकर जो अपनी भाभी से बात करी और कहा उनकी कोई निशानी मौजूद है, उन्होंने कहा हाँ ये बेटा है, 7-8 साल के हो गए थे उस वक्त शेबा जो है। तो उन्होंने कहा ये हमारा बच्चा है, हमारी नस्ल है, हमारा खून है, इसे हमें दे दें। तो उनके वालिदा ने मना करा, भाई मेरे पास उनकी एक ही निशानी है, उसको भी आप ले जाना चाहते हैं, मैं माँ हूँ, मैं कैसे दे सकती हूँ। तो मुत्तलिब ने कहा कि मैं जो है इनको सरदार बना दूंगा। मुत्तलिब सरदार थे, तो मुत्तलिब ने कहा आप मुझे दे दो, मैं मक्का लेकर जाऊंगा तो मैं इन्हें सरदार बना दूंगा। तो इस वजह से उनकी माँ ने मुत्तलिब को शोभा को मुत्तलिब को दे दिया, जो अल्लाह के रसूल के दादा के चाचा थे ना। तो मुत्तलिब शोभा को लेकर जब मक्का आए तो 2 रिवायतें हैं। कुछ लोगों ने किताब में लिखा है कि मुत्तलिब जो है बड़े गंदे हो शोभा जो है बड़े गंदे हो रहे थे, छोटे बच्चे थे और जो है इतनी परवरिश भी अच्छी नहीं हुई थी, है ना, कपड़े भी गंदे वगैरह थे। मुत्तलिब सरदार थे। लोगों ने जब गंदा संदा देखा तो उन्होंने कहा ये तो मुत्तलिब का गुलाम आया है। मुत्तलिब जो है मदीने से गुलाम खरीद कर लाए, किसी को मालूम नहीं था इनका भतीजा भी वहां मौजूद है। तो लिखा किताबों के अंदर मुत्तलिब जो चुप हो गए, उन्होंने थोड़ा सा शर्म महसूस की कि मैं चुप अपना भतीजा कहूँ, क्योंकि गंदे संदे थोड़े से इस तरह हुए थे। तो इसलिए इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल के माने आते गुलाम के, तो अब्दुल मुत्तलिब का मतलब हो गया मुत्तलिब का गुलाम, है ना। तो इस तरह इनका नाम मुत्तलिब पड़ गया। बाद किताबों के अंदर लिखा है कि मुत्तलिब ने कहा नहीं ये मेरा जो है भतीजा है, गुलाम नहीं है। लेकिन जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया तो जबान पर मुत्तलिब का लफ्ज चढ़ गया, लोग जो है इनको अब्दुल मुत्तलिब के नाम से ही याद करने लगे। तो इस तरह इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ा। तो इन्हीं के खानदान में जो है तो हाशिम का खानदान चला। हाशिम के खानदान में इनके बेटे अब्दुल मुत्तलिब, इनके बेटे अब्दुल्ला, फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। इसी तरह अब्दुल मुत्तलिब के कई बेटे थे, 10 या 11 बेटे थे ना। उसमें एक अब्दुल्ला और जो मशहूर है अबू तालिब ना। अबू तालिब के बेटे हज़रत अली। हमने अशरा मुबशरा के नाम आपको जो है दिखाए और याद हमने कहा याद कर लेना। तो इसके अशरा मुबशरा जो है पूरे कुरैश के अंदर यही 10 के 10 अशरा मुबशरा जो है कुरैश के अंदर ही है। कुरैश के बाद जो है कोई भी अशरा मुबशरा नहीं है, कुरैश के अंदर ही है। तो इसी तरह हम गिनवाते हुए रहेंगे इंशाल्लाह जो है अशरा मुबशरा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जो है इसी खानदान में थे, बनु हाशिम के अंदर से। हमने यहाँ लिख भी दिया है, नंबर 1 बनु हाशिम। दूसरा खानदान अब्दुल मुनाफ के कई लड़के थे, हाशिम, मुत्तलिब, अब्दुल शम्स। अब्दुल शम्स के बेटे थे उमैया। उमैया के और भी लड़के थे जो मशहूर हैं और जिनसे हमारा फिलहाल जो है खास ताल्लुक है, उन्हीं को हमने बयान करा है। उमैया के 2 बेटे थे, एक हर्ब और एक अबुल आस, है ना। हर्ब के बेटे अबू सुफियान, उनके बेटे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, ना। एक अबुल आस के बेटे अफ़ान, अफ़ान के बेटे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अशरा मुबशरा के अंदर मौजूद है। एक अली रज़ी अल्लाह अन्हु अशरा मुबशरा हो गए, दूसरे और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अशरा मुबशरा हो गए। तो ये खानदान जो है बनु उमैया के नाम से चला। हालांकि अब्दुल शम्स थे यहाँ पे, लेकिन अब्दुल शम्स जो ज्यादा मशहूर नहीं हुए, उमैया मशहूर हो गए, तो इनका खानदान जो है बनु उमैया के नाम से चला।
जो खिलाफत राशिदा के बाद जिनके पास हुकूमत आई, बनो उमैया के पास ही जो है हुकूमत चली है। ये दो खानदान हो गए। तीसरा खानदान इसी तरह अब ऊपर आई कुसई। कुसई के दो बेटे थे, अब्दुल उज़्ज़ा, अब्दुद्दार, है ना। अब्दुल उज़्ज़ा के बाद अब्दुल उज़्ज़ा के बेटे असद, असद के बाद खुवैलिद, खुवैलिद के बाद अवाम, फिर जो है जुबैर। जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु भी अशर मुबश्शरा के अंदर मौजूद है। तो इसको जो है बनो असद कहते हैं, उन्हें वहां जो है लिखा भी था बनो असद। बनो अब्दुल उज़्ज़ा भी कहते हैं, सबसे ऊपर वाले अब्दुल उज़्ज़ा है, ज्यादा मशहूर असद के नाम से हुए तो इसलिए जो है बनो असद कहा जाता है, कहीं कहीं इसको बनो अब्दुल उज़्ज़ा भी कहा जाता है। और इसी खानदान में से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी हैं, जो अल्लाह के रसूल की बीवी हैं, खदीजा बिन्त खुवैलिद। ये जो खुवैलिद है वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद हैं। ये तीसरा खानदान है। इसी तरह चौथा खानदान अब्दुद्दार। अब्दुद्दार के बेटे उस्मान, इनके बेटे अब्दुल उज़्ज़ा, इनके बेटे अब्दुल्ला, उनके बेटे उस्मान, उनके बेटे तलहा, तलहा बिन उस्मान। ये साहबी जो है ये मशहूर साहबी है, मशहूर जो है ये कबीला है। और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु वो साहबी हैं जो अल्लाह के रसूल हिजरत से पहले मक्का के अंदर रहते थे। तो एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा से खाने काबे की चाबी मांगी। इनके पास खाने काबे की चाबी रहा करती थी, है तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु के पास। तो तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने चाबी देने से मना कर दिया, चाबी नहीं दी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तलहा उस वक्त क्या होगा जब चाबी हमारे पास होंगी और आप जो है हमारे चाबी के मोहताज होंगे। बहरहाल उसका जब मक्का फतह हो गया, मक्का फतह होने के बाद अल्लाह के रसूल ने तलहा बिन उस्मान से जो है चाबी मांगी, उन्हें आनाकानी करी, लेकिन क्योंकि अब तो हुकूमत अल्लाह के रसूल की थी, मक्का फतह हो चुका, तो अल्लाह के रसूल ने जो है उन्हें थोड़ा सा सख्ती से कहा, तो चाबी लेकर आ गए। तो अल्लाह के रसूल ने उसकी सफाई करी, वहां नमाज पढ़ी, उसके बाद चाबी जो है तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दी और कहा क़यामत तक तुम्हारे खानदान में ही चाबी रहेगी खाने काबे की, और जो तुमसे चाबी छीनेगा वो जालिम होगा। तो आज तक इसी खानदान के अंदर जो है खाने काबे की चाबी चलती आ रही है। तो ये चौथा खानदान है बनो अब्दुद्दार, चौथा। ये पांचवा है, एक किलाब के बेटे हैं जोहरा, इससे ऊपर के आगे। ये कुसई के बेटे थे अब्दुल उज़्ज़ा और अब्दुद्दार। इसी तरह किलाब के बेटे हैं जोहरा। जोहरा के दो लड़के, एक हारिस और एक अब्दुल मुनाफ। हारिस के लड़के अब्द, अब्द के लड़के अब्द औफ, अब्द औफ के लड़के औफ, और इनके लड़के अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान बिन औफ जो अशर मुबश्शरा के अंदर है, ये पांचवें खानदान के अंदर मौजूद है। इसी तरह इनके एक लड़के थे अब्दुल मुनाफ, उनके दो बेटे थे, एक उहैब एक वहाब। उहैब के बेटे अबी वक्कास, उनके बेटे साद, साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी अशर मुबश्शरा के अंदर मौजूद है। इसी तरह अब्दुल मुनाफ के दो बेटे थे उहैब और वहाब। वहाब की बेटी है आमिना। आमिना कौन है? अल्लाह के रसूल की वालिदा है, जो अल्लाह के रसूल की वालिदा है वो जो है वहाब की बेटी। और ये किलाब से जो है किलाब पे जाकर अल्लाह के रसूल का नसब और अल्लाह के रसूल की वालिदा का नसब दोनों जो है किलाब पे जाकर मिल जाते हैं। मिसाल के तौर पर मोहम्मद बिन आमिना बिनत वहाब बिन अब्दुल मुनाफ बिन किलाब, है ना। इधर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब, यहाँ पर जाकर जो है वालिद और वालिदा दोनों के नसब जाकर किलाब पर मिल जाते हैं इसी तरह। और है साद रज़ी अल्लाह अन्हु को इसीलिए अल्लाह के रसूल का मामू भी कहा जाता है। फ़ज़ाइल अमाल के अंदर एक वाक़या आपने पढ़ा भी होगा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने साद रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है कादसिया की लड़ाई के लिए अमीर बनाकर भेजा। तो उनसे फरमाया कि साद तुम इस जाम के अंदर मत रहना कि मुझे जो है नबी का मामू कहा जाता है ना। हालांकि नबी के ममेरे भाई लगेंगे लेकिन उसी खानदान के, तो इसलिए उनको मामू कह दिया जाता है। तो ये पांचवा खानदान है बनु जोहरा। ऐसा अब ऊपर आइए मुर्रा। मुर्रा के जो है दो बेटे हैं, यकजा और तेम। यकजा के बेटे मखजूम, मखजूम के बेटे उमर, उमर के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मुगीरा, मुगीरा के बेटे वलीद, वलीद के बेटे खालिद। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो इस खानदान के अंदर है, खानदान बनु मखजूम के अंदर। खालिद बिन वलीद किसमें? बनु मखजूम के अंदर। इसी बनु मखजूम के अंदर जो है उम्मे सलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा जो अल्लाह के रसूल की बीवी हैं,
उम्मे सलीमा रजी अल्लाह अन्हा वो भी बनु मखजूम के अंदर है। इसी तरह अबू जहल भी बनु मखजूम के अंदर था, है ना। अबू जहल का बेटे इकरिमा रजी अल्लाह अन्हु जो बाद में ईमान लिया है, तो वही जो है बनु मखजूम के अंदर थे, तो छठा खानदान है। इसी तरह मुर्रा के बेटे यकजा थे, यकजा से बनु मखजूम चले, मखजूम का कबीला जो है मखजूम के नाम से कबीला बना। इसी तरह एक बेटे थे तेम, तेम के बेटे साद, साद के बेटे काब, काब के बेटे अमर, अमर के बेटे आमिर, आमिर के बेटे अबू कुहाफा, अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ना, ये भी अशरा मुबश्शिरा के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह जो अमर है, अमर के दो बेटे थे, एक आमिर और एक उस्मान, उस्मान के बेटे उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह के बेटे तलहा, तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये भी जो है अशरा मुबश्शिरा के अंदर है। इस तरह इससे ऊपर के एक काब, एक काब के जो है ये बेटे हैं, एक हुसैस और एक अदी, दो बेटे। हुसैस के बेटे अमर, अमर के बेटे जुम, जुम के बेटे वहाब, खल्फ, उमैया और सफवान ना। ये उमैया है, ये वो उमैया है जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है तकलीफ पहुंचाया करते थे, बांध कर जो है उनकी पिटाई किया करते थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को जो आका थे, कहते ना कभी उमैया बिन खल्फ आता, कभी जो है ये उमैया बिन खल्फ, ये ऊपर खल्फ लिखा हुआ है ना नाम, तो उमैया बिन खल्फ है, तो उमैया वो है। एक तो उमैया ये है जो बनु उमैया के नाम से मशहूर है, वो दूसरे उमैया है, और ये दूसरे उमैया है ना। फिलहाल तो ये बनु जुम है। इस तरह काब के बेटे एक हुसैन थे और एक अदी थे। अदी के बेटे रजा, रजा के बेटे फर्द, फर्द के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे रवाह, रवा के बेटे अब्दुल उज़्ज़ा, अब्दुल उज़्ज़ा के बाद नुफैल, नुफैल के दो बेटे, एक खत्ताब और एक उमर ना। खत्ताब के बेटे उमर रजी अल्लाह अन्हु, जो उमर बिन खत्ताब, जो अशरा मुबश्शिरा के अंदर मौजूद है। इसी तरह खत्ताब के बेटे एक और यहाँ दूसरे उमर हैं, उमर के बेटे जैद, जैद के बेटे सईद, सईद रजी अल्लाह अन्हु, ये भी वो सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु, ये भी अशरा मुबश्शिरा के अंदर मौजूद है, सईद बिन जैद। तो ये बनु अदी के अंदर है। सईद बिन जैद जो है यह तो उमर रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने का जरिया बने थे। जब अपनी बहन के यहाँ गए, जाने के बाद जो है वाक़या मशहूर है, जो बहनोई मौजूद थे इनको पीटा था उमर रजी अल्लाह अन्हु ने, और फिर बाद में यही जरिया बन गए। तो यही जो है वहां पर मौजूद थे सईद बिन जैद, इनके बहनोई भी थे और इनके भतीजे भी थे, हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु खानदान के ही थे, बनु अदी। तो ये जो है बनु अदी है, इनके अदी थे। इसी तरह हुसैन जो थे, हुसैन से ही ये उनके बेटे अमर, अमर के बेटे एक तो जुम और एक सहम, सहम के बेटे माबद, माबद के बेटे हाशिम, वाइल, आस और अमर। ये अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु, ये भी जो है काफी मशहूर साहबी हैं, और इनको फाते मिस्र कहा जाता है। मिस्र जो है अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने फतह किया था, इनको बनु सहम कहा जाता है। ये 10 कबीले हो गए, जो बड़े बड़े कबीले थे वो क्या हो गए, 10 कबीले। इस तरह और भी कबीले थे जो मशहूर नहीं थे, छोटे छोटे कबीले थे, उसमें एक कबीला हमने लिया है। वो क्यों लिया है कि अशरा मुबश्शिरा के अभी एक साल बाकी रह गए, अब यहाँ तक 9 हुए, 10वें जो है वो इस नस्ल के अंदर यानी इस पुश्त के अंदर है। वो यहीं से सहार, सहार के जो है एक बेटे हो गए गालिब और एक बेटे हुए हारिस, है ना। हारिस के बेटे जुब्बा, जुब्बा के बेटे उहैब, उहैब के बाद हिलाल, हिलाल के बाद जर्रा, जर्रा के बाद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बाद अबू उबैदा, क्योंकि अबू उबैदा बिन जर्रा कहा जाता है ना। दादा की तरफ मंसूब किया जाता है, जर्रा जो है इनके दादा है ना, अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये भी अशरा मुबश्शिरा के अंदर है। एक मुख्तसर बात यह है कि जब कुसै ने बनो खुज़ाआ से अपना इलाका जो है छीन लिया और उस पर जो है काबिज हो गए, तो कुसै ने जो है मजबूत करने के लिए, पूरा निज़ाम मजबूत करने के लिए उन्हें जो मिनिस्ट्री थी वो सब में खानदानों में बांट दी। एक खानदान में रहेगा, दूसरे खानदान वाले जो है दुश्मन बन जाएंगे। तो उन्होंने ये करा कुसै ने कि सारी जो मिनिस्ट्री थी वो सबके अंदर तकसीम कर दी, ताकि सबको ये खबर रहे कि हमारे पास भी क्या है, कोई मिनिस्ट्री है, तो इसलिए वो मुतमईन रहे। तो बनु हाशिम के पास जो है वो काबे के मुतवल्ली थे। बनु हाशिम काबे का सारा निज़ाम ना, ये जो होता है ना मस्जिद कमेटी होती है, गोया के जो मुतवल्ली होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, तो ऐसे ही तो खाना का बनु हाशिम जो है खाना काबे के मुतवल्ली थे, इनको जो है मुतवल्ली। उसके बाद बनु उमैया, बनु उमैया का जो काम था उकाब यानी झंडे वाले,
जब भी लड़ाई होती थी कुरैश की तो बनो उमैया के हाथ में झंडा रहता था। पहले जब जंग हुआ करती थी तो झंडा हाथ में होता था, झंडा गिर गया तो जंग हार गए, झंडा बाकी है तो जो है जंग बाकी है। बनो असद जो है अमानतदारी, अमानत का काम था। कोई भी अमानत होती थी इनके पास रखवाई जाती थी, या बैंक का काम कह सकते हैं। बैंक के पास जो अमानत रखवाई जाती है अपनी, या जो लोकरों के अंदर कोई भी सामान रख देता है अमानत के तौर पर, तो ये काम जो है बनो असद का था ना। इस तरह हमने बतला दिया बनो अब्दुद्दार के हाथ में जो है चाबी थी, चाबी की जिम्मेदारी बनो अब्दुद्दार के हाथ में थी, जो हमने बतलाया अभी। बनो जोहरा शूरा वाले, यानी शूरा से मुराद ये शूरा नहीं है, शूरा से मुराद होता मशवरा करना, मशवरा देना कहीं भी जो है, या मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, मीटिंग बिठाना ना, मीटिंग के लिए कॉल करना, सबको बुलाकर जो है मीटिंग करना, मशवरा करना। कोई भी जो है अगर कहीं से खतरा है, कुछ जंग होनी है या उसके अलावा कोई भी किसी बात पर जो है मशवरा करना है, तो बनो जोहरा वाले जो है मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते थे, उसका वक्त तय करते थे, सबको बुलाकर फिर मीटिंग क्या करते थे किसी भी चीज के मुतालिक। तो ये जिम्मेदारी जो है बनो जोहरा को थी। ये बनो मखजूम जो है कुब्बा वाले, यानी फौजी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। बनो मखजूम के अंदर बड़े बहादुर और फाइटर और कमांडर किस्म के लोग जो है हुआ करते थे बनो मखजूम के अंदर, इसलिए जिम्मेदारी भी जो है इसी तरह की। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु आप जानती हैं, सबसे ज्यादा मशहूर है ना, और जो है ऐसी कमांडरी किसी ने आज तक करी नहीं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी कभी वो हार कर नहीं आए, सारी लड़ाइयाँ जीत कर आए। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल होने लगा तो रोने लगे और कहने लगे मैंने पूरी जिंदगी ख्वाहिश करी कि मैं अल्लाह के रास्ते में जो है शहीद हो जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। बिस्तर के ऊपर जो है इनका इंतकाल हुआ बहरहाल। इसी तरह इकरामा बिन अबी जहल बड़े जबरदस्त फाइटर थे, ये भी बड़े जबरदस्त कमांडर करते थे। इसी तरह अबू जहल, वो भी जो है बड़ा बहादुर समझा जाता था, वो जो है बड़ा जो है कमांडर था वो भी। तो इनके खानदान में जो है इस तरह के लोग होते थे, इसलिए इन्हें जिम्मेदारी भी फौजी और कमांडरी की इनको दी गई कि फौज का सारा निजाम आपको ही जो है संभालना है। बनो तैम के अंदर जो है अबू बकर और तलहा बिन उबैदुल्लाह दो अशरफ मुबश्शरा हैं। इनका काम और इनकी जिम्मेदारी थी अशनान कहते हैं दियत तय करना। दियत का मतलब होता है कि दो आदमियों के अंदर लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद एक ने दूसरे को मार दिया ना, तो जिन्होंने मारा है जज के अंदर, कोर्ट के अंदर केस जाता है ना, तो जज फैसला करता है। तो जज का जो है कोर्ट का काम जो है इनको दिया हुआ था कि आपको फैसला करना है किसकी दियत कितनी होगी, किस चीज की क्या दियत है क्या नहीं। इस्लाम जब आया, इस्लाम ने तो हर एक की दियत मुतय्यन कर दी। ये बहुत सारी चीजों के भी मुतय्यन नहीं है जो है काजी के ऊपर या जज के ऊपर होती है कि वो अपनी राय से उसको तय करता है। तो ये काम जो है इनका बनो तैम का था। इसके बाद ये कबीला है बनो जुहम। बनो जुहम का काम था सफारत खाना, बैरूनी मुल्क से बातचीत करना। हर मुल्क के अंदर होता है तकरीबन, तो जो बैरूनी मुल्क से जो है काम, जो भी काम है, आना है जाना है या कोई भी किसी तरह के कोई बातचीत करनी है, तो वो जो कबीला बनो जुहम के पास रहता था। ये बनो अदी के अंदर जो है उमर बिन खत्ताब और सईद बिन ज़ैद, ये दो अशरफ मुबश्शरा हैं। तो इनका काम था फालगिरी। पहले अल्लाह के रसूल के ज़माने से पहले जो फाल निकाला करते थे, यानी नेक फाल, कि अगर इस तरह हो गया तो इस तरह होगा, बिल्ली रास्ता काट गई तो जो है इसको बुरा फाल कहते हैं ना, वो इस्लाम के अंदर जायज़ नहीं है। नेक फाल लेना ये जायज़ है। तो जो है कुछ मुकद्दस तीर हुआ करते थे, तो उस वक्त लड़ाई से पहले जो तीर चलाते थे, यहाँ लग गया तो जो है लड़ाई लड़नी चाहिए, नहीं लगा तो नहीं लड़नी चाहिए, इस तरह जो फाल निकाला करते थे किसी तरह। तो इस फाल निकालने की जिम्मेदारी बनो अदी पर थी। इस तरह बनो साम जो है मालियात का सारा हिसाब किताब है ना, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है, ये जो है इनका काम था, सारे माल वगैरह उसका सारा हिसाब किताब रखना ना, ये बनो सैम के जिम्मे था। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सब जो है आपको समझ में आ गया होगा ना। तो समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह इसको जो है वीडियो को सुनकर फिर दोबारा समझें। अल्लाह ताला जो है हम सबको समझने की और जो है अमल की तौफीक अता फरमाए।